13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی لڑکی 16 برس بعد توبہ ٹیکسنگ سے بازیاب۔ 2005 کے ہولناک زلزلے سے متاثرہ لڑکی کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ خاتون کو مبینہ طور پر مختلف ہاتھوں میں فروخت کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے علاقے چکوٹھی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں 13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی لڑکی 16 سال کے بعد توبہ ٹیکسنگ سے بازیاب ہو گئی۔ 2005 کے ہولناک زلزلے سے متاثرہ لڑکی کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا اور خاتون مبینہ طور پر مختلف ہاتھوں میں فروخت بھی کی گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے چکوٹھی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی لڑکی 16 برس کے بعد توبہ ٹیکسنگ سے بازیاب کروا لی گئے۔ 2005 کے زلزلے سے متاثرہ لڑکی کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ خاتون کو مبینہ طور پر مختلف ہاتھوں میں فروخت بھی کیا گیا۔ چکوٹھی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تھی۔ خاتون کے اغوا کا مقدمہ تھانہ چکوٹھی میں 2008 میں درج کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نامی شخص اغوا کر کے جھنگ لایا اور کئی سال اپنے پاس رکھا۔ خاتون کا ایسا کہنا ہے جبکہ مصطفیٰ سے خرید کر موزہ شاہپور جو ہے وہ لے کے آیا گیا ان کو، اور علاقہ مجسٹریٹ کے حکم سے خاتون کو دارالامان توبہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی لڑکی کو 16 سال کے بعد بازیاب کروا لیا گیا۔ 2005 کے زلزلے سے متاثرہ لڑکی کشمیر سے جب اسلام آباد آئی تو اس کو اسلام آباد سے اغوا کر دیا گیا، جس کے بعد اس کو مختلف ہاتھوں میں جو ہے وہ فروخت کیا گیا۔ چکوٹھی سے تعلق رکھنے والی خاتون اپنی بازیابی کے لیے انہوں نے ویڈیو جاری کی اور اس کے بعد اب 16 سال کے بعد جو ہے ان کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ نامی شخص اغوا کر کے ان کو جھنگ لایا، کئی سال اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد موزہ شاہپور میں ان کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم سے خاتون کو دارالامان توبہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آسیہ بی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی لوگوں نے ان کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ اللہ یار نامی شخص 25,000 روپے کے عوض آسیہ کو مصطفیٰ سے خرید کر موزہ شاہپور لے آیا۔ اللہ یار نے آسیہ سے نکاح کر لیا۔ آسیہ نے اپنی رودات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ تھانہ نواتی پولیس نے موزہ شاہپور سے آسیہ کو برآمد کیا۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم سے آسیہ کو دارالامان توبہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ چکوٹھی پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے، ایسا ترجمان پولیس کا کہنا ہے، جبکہ آسیہ نے اپنے والدین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں آسیہ بی بی نے مزید یہ کہا کہ میں مزید اس کے علاوہ ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں باپ بہن بھائی سب کی یاد آتی ہے، مجھ پر ظلم کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے، ایسا آسیہ بی بی کا کہنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 16 سال کے بعد جو خاتون ہے ان کو آزاد کروا لیا گیا ہے اور 13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی لڑکی 16 برس کے بعد توبہ ٹیکسنگ سے بازیاب ہوئی ہیں۔ اور 2005 کے ہولناک زلزلے کے بعد جب ان کی فیملی اسلام آباد آئی تو وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو جھنگ لایا گیا اور جو ملزم مصطفیٰ ہے اس کے ہاتھوں جو ہے انہوں نے آگے ان کو فروخت کیا، پہلے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد خاتون نے اپنی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے والدین کی یاد ستاتی ہے، مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس نے جب ان کی ویڈیو حاصل کی تو پولیس نے ان کو وہاں سے بازیاب کروایا اور اب ان کو دارالامان منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 16 سال کے بعد آسیہ بی بی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ 13 برس کی عمر میں اغوا ہونے والی آسیہ بی بی کو 2005 میں جو ہے جب زلزلہ آیا تو کشمیر سے وہ اسلام آباد میں ان کی فیملی آئی، جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس کے بعد ملزم مصطفیٰ کے ہاتھوں جو ہے وہ کافی عرصہ ان کے پاس رہی، پھر اس کے بعد ملزم نے آگے ان کو بیچ دیا اور جو خاتون تھی انہوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا، جہاں سے پولیس نے ان کی ویڈیو دیکھی اور ان کو وہاں سے بازیاب کروایا۔ اور ان خاتون کا آسیہ بی بی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو اپنے گھر والوں کی یاد ستاتی ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کی یاد آتی ہے اور ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی، جنہوں نے ظلم کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔
यहाँ आपको बताया लेमिनेशन पेपर की किल्लत या सिल्वर प्रिंटिंग प्रोसेस पासपोर्ट की फराहमी इल्तवा का शिकार साइलिन इंतजार में ख्वार होने लगे। तफसीलात क्या है वकास अहमद बेग से जानते हैं। वकास बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना जो है वो फैसलाबाद के शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। लेमिनेशन पेपर की कमी के बायस जो है दिसंबर 2023 में पासपोर्ट प्रिंटिंग में ताख़ीर का सामना जो है वो शुरू हुआ था, जो कि मुसलसल अब तक जारी है। अब तक की अगर सूरत हाल की बात कर ली जाए तो फैसलाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के 40,000 से ज़ायद पासपोर्ट जो हैं वो ताहाल प्रिंट नहीं हुए, जो कि 12 दिसंबर के बाद से अप्लाई किए गए थे। इस हवाले से पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है बाकायदा डेट योमिया की बुनियाद पर मेंशन की जा रही है कि किस डेट के पासपोर्ट जो हैं वो वसूल किए जा सकते हैं, जिसमें 12 दिसंबर 2023 तक जो है ताहाल पासपोर्ट शहरियों को मिल रहे हैं। जबकि इसके बाद यानी गुज़िश्ता 4 माह में पासपोर्ट जिन शहरियों की जानिब से अप्लाई किए गए थे, पासपोर्ट रिन्यू करवाने के हवाले से हो, नए पासपोर्ट हो या पासपोर्ट में कुछ दुरुस्तगी हो, वो पासपोर्ट ताहाल नहीं मिल सके। इस हवाले से पासपोर्ट ऑफिस ज़राए का भी ये कहना है कि शहरी जो है वो ऑनलाइन भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी वकास, शुक्रिया आपका। रवां साल ईद उल फितर पर कपड़े की डिजिटल प्रिंटिंग का काम ना होने के बराबर रहा। कपड़े पर हैवी एम्ब्रॉयडरी और आर्ट्स का कारोबार कदरे बेहतर रहा। ताजर कहते हैं गुज़श्ता 2 साल से एम्ब्रॉयडरी मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं। तफसीलात शराज भट्ट से जानते हैं। शराज बताइएगा। खसूसी तौर पर बात करें ईद उल फितर के हवाले से तो ईद उल फितर पर जो कारोबार है वो प्रिंटिंग का, कपड़े के ऊपर जो प्रिंटिंग डिजिटल प्रिंटिंग का जो है वो कदरे कम रहा है। जबकि ख़ास तौर पर जो हैवी एम्ब्रॉयडरी के हवाले से बात करें तो एम्ब्रॉयडरी का कारोबार जो है वो खासा बेहतर रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से मौजूद हैं मियां तारिक साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं क्या वाकई ही जो नज़र को नज़र आ रहा है, जो दिखने में नज़र आ रहा है, क्या कारोबार उसी तरीके से बेहतर रहा है ईद उल फितर के हवाले से। मियां साहब ये बताएगा, कारोबार ईद उल फितर पर एम्ब्रॉयडरी का कदर बेहतर रहा है, हकीकत भी यही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा टेक्निकली कि हमारी जो मशीन थी 50-55 लाख रुपए की 2021 तक, तो वो मशीनें जो है ना हम लोगों ने पुरानी मशीनें तमाम कबाड़ में बेच दी, काम होता नहीं था। एक तो हमारी पुरानी मशीनें 2016-17 मॉडल तक जो थी ना वो कबाड़ में चली गई। उसके बाद 18, 19, 20, 21 रह गई। तो ये इस मॉडल की मशीनें जो उस वक्त 50-55 लाख की नई मशीन आती थी, लोगों ने नई मशीनें लगाई नहीं। डिजिटल का काम होता था, प्रिंट का काम होता था, लोग माल प्रिंट कराते थे, बेचते थे, ठीक ठाक उनका माल बिकता था। ये सीज़न ऐसा है कि पुरानी मशीनें कबाड़ में चलेगी, नई मशीन जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए की होगी। तो गैप बहुत ज़्यादा आ गया। नई मशीन लगाने की शक्त नहीं रही मशीनों वालों में, पुरानी मशीनें कबाड़ में चलेगी। डिजिटल का काम बंद हो गया। इस सीज़न में डिजिटल का काम नहीं चला, प्रिंट का काम नहीं चला, एम्ब्रॉयडरी पे लोड आ गया, एम्ब्रॉयडरी हैवी होगी, जिसको हम एम्ब्रॉयडरी की ज़बान में कहते हैं आर्ट्स का काम शुरू हो गया। पहले एक छोटा सा गला ही बनता था या हेड्स की बनता था, इस दफ़ा आर्ट्स का काम बहुत ज़्यादा हैवी। जी शराज, शुक्रिया आपका। घंटाघर फैसलाबाद के 8 बाजारों में बिजली के बेहंगम तारों को ज़ेरे ज़मीन करने का देरीना मुतालबा ताहाल पूरा न हुआ। ताजिर परेशान है। फजील अहमद से जानते हैं। जी फजील। फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ारों के ताजरों का दरीना मसला है कि बिजली के जो लटकते तार हैं उनकी वजह से शदीद मुश्किलात हैं ताजरों को। आए रोज़ ताजरों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के वाक़यात गर्मी के मौसम में जो है वो बढ़ जाते हैं। फेस्को से बारहा मुतालबात कर चुके हैं और फेस्को की जानिब से काम लिया जा रहा है। कभी जो है वो अफसरान की जानिब से कहा जाता है कि जो वायर्स हैं फेस्को के बिजली के वायर्स उनकी पाइपिंग की जाएगी, लेकिन ताहाल कोई भी अभी तक इकदाम जो हैं वो नहीं किए जा सके। मिंटगोमरी बाज़ार के सदर में साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ ताहिर जमील, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। हाफ़िज़ साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है लटकते तारों की वजह से जो शटरों के ऊपर बेहंगम पड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हमारे सामने शेड पड़े हैं, इन दुकानदारों ने बेचारों ने अपने शेड तब्दील करवाने हैं। इस पर इतनी तारें हैं कि वो बारहा दफ़ा मैं कह चुके हैं कि जनाब ये तारें ठीक करवा दो, हम अपने शेड सारे तब्दील करवाने हैं। ऊपर रहायशें हैं, जब बारिशें होती हैं तो ये जो हमारे शटर हैं इसमें करंट आ जाता है। मिंटकुंडी बाज़ार सूतर मंडी में देखें कि तारों की वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ और अक्सर शेडें जो हैं वो सारे की सारी तारों की से भरी हुई हैं। हमारा चेयरमैन फेस्को जनाब मलिक तहसीन साहब से ये मुतालबा है कि जिस तरह आपने घंटाघर हमारे साथ वादा किया था, इसमें हमारे चेयरमैन अमीन भट्ट साहब भी थे कि हम पूरे बाजार की तारों को अंडरग्राउंड करेंगे। बराए मेहरबानी इनको अंडरग्राउंड किया। जी बिल्कुल, ये बात आपने। जी फजील, शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं, फेस्को में नीलम जहलम सरचार्जेस की मद में जायद पैसे वसूल किए जाने का मामला। फेस्को ने सारिफीन से ज्यादा पैसे दिए। तफसीलात क्या है वैसली से जानते जी, वैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसों का मामला। नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में फेस्को ने सार्फिन से 2.5 अरब रुपए जो है वो मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद वसूल किए। नीलम झेलम का मंसूबा साल 2018 में मुकम्मल हुआ, मगर उसके बावजूद फेस्को की जानिब से सार्फिन से 2.5 अरब रुपए की जो रकम है वो नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में वसूल की गई, जो कि सार्फिन को वापस करना थी, ताहाल वापस नहीं हो सकी है। फेस्को ने नीलम झेलम अथॉरिटी को लेटर लिख दिया गया है कि वो सार्फिन के वो पैसे जो मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद वसूल किए गए थे, वो पैसे नीलम झेलम जो है वो फेस्को को वापस करे, ताकि बिजली के बिलों में एडजस्ट करके सार्फिन को सहूलत फराहम की जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए गए पैसे वापस लेने के हवाले से जो है वो नीलम झेलम अथॉरिटी को लेटर जो है वो लिख दिया है। अलबत्ता जी बस शुक्रिया आपका। बोगस सेल्स टैक्स रिफंड की शिकायत पर वफाकी टैक्स मोहतसब का बड़ा इकदाम। तफसीलात क्या है जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, बोगस सेल्स टैक्स रिफंड्स की शिकायत पर वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत जारी की गई हैं कि सरकार को नुकसान से बचाने के लिए एफबीआर जो है वो रिफंड्स की मुकम्मल तौर पर छानबीन के बाद ही इसकी कंफर्मेशन करे और टैक्स गुजारों को इसकी अदायगियाँ की जाए। इस हवाले से वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी भी टैक्स गुजार की जानिब से रिफ़ंड क्लेम किया जाता है और बिलखुसूस सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लेम किए जाते हैं, तो उसमें मुतलका जो मसनूआत हैं उनके HS कोड जो हैं वो चेक किए जाएं कि जो रिफंड्स के साथ या अशिया इस्तेमाल की गई हैं वो आपस में मैच होती हैं या नहीं। यानी कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई मसनूआत बनाकर फ़रोख्त की हैं और उस पर बाद अज़ां सेल टैक्स रिफंड्स क्लेम किया गया, तो इसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो रॉ मटेरियल रिकॉर्ड में ज़ाहिर किया गया वही जो है वो बाद अज़ां रिफंड के रिकॉर्ड में है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुतलका टैक्स गुजारों के बिजली और गैस के जो बिल हैं उनको भी चेक किया जाए कि आया कि मुतलका। जी उमर शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, जंग में गैर कानूनी LPG गैस रिफिलिंग पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 34 पॉइंट्स को सरबमोहर कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA के सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। मजमूई तौर पर 15 मुकदमात दर्ज करवा लिए गए। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल ये होलनाक वाकया पेश आया था जिसमें मुतअद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और हलाकतें भी हुई, कीमती जानों का ज़या हुआ, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, सिविल डिफेंस की जानिब से कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो जंग भर में जो रीफिलिंग स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ उस वाकये के एनी शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। इब्राहिम साहब, ये बताइएगा, क्या समझते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि रीफिलिंग स्टेशन शहर से बाहर होने चाहिए या गवर्नमेंट इसके लिए कोई मुनासिब ठोस इक़दाम उठाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी ये सिटी के अंदर इन्होंने गैस स्टेशन बनाए हुए हैं, इनको चाहिए कि ये आउट ऑफ सिटी होने चाहिए, खुली जगह पे, ताकि जो अभी जानी नुकसान हुआ है इससे बचा जा सके, अभी भी और आगे भी। जो अभी जानी नुकसान हुआ है इससे और भी बेहतर है कि ये बाहर होना चाहिए, ताकि बाहर चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर खुर्शीद शेख साहब मौजूद है, से बात कर। ये बताइए, वाकयात होते रहते हैं, हुकूमत इकदाम नहीं उठाती, कितना ज़रूरी है कि इसका कोई बंदोबस्त किया जाए? जी बिल्कुल, इसी तरह कि ये रीफिलिंग के जितने भी स्टेशन या दुकानदार ये बैठे हैं, इन सारों को ऐसी जगह पे होना चाहिए जो ओपन एरिया हो, ताकि कोई ऐसा जानी नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन मेरी इसी के साथ साथ इंतज़ामिया से और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वज़ीर आला साहबा से ये गुजारिश है कि इनका कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए या इनका ऐसा लाअमल तैयार किया जाए कि ये नुकसान जो अब हुआ है आइंदा ना हो। अच्छा, ये बताएं कि अब 10, 12, 14 किलो का सिलेंडर है, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, तो छोटे सिलेंडर नहीं होने चाहिए आपके ख्याल में? जी ये बात भी ठीक है कि बड़े सिलेंडर जो है, महंगाई इतनी है, वो पहुंच से बाहर होते हैं, तो छोटे सिलेंडर हों ताकि यह है कि गरीब आदमी भी उससे फ़ायदा उठा सके, और इनका कोई बंदोबस्त जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। बहुत इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कार्रवाई तो की गई है। 34 रीफिलिंग स्टेशन बंद किए गए, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 18 गाड़ियां बंद की गई, 11 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन जरूरी है कि इस हवाले से ठोस इकदाम जो है वो उठाए जाएं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में चोर और डाकू बेलगाम, गैर महफूज शहरी हैं सरापा एहतजाज। शहरियों का DP ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। क्या कहना है उनका, मजीद तफसीलात जानेंगे कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा।
शहर चिन्योट के बासी ईद के दिनों के अंदर भी चोरी और राहजनी के वाक़यात से महरूम रह रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए मुतादिद शहर के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर ईद के दिनों में भी शहरी लुटते दिखाई दे रहे हैं। चिन्योट की पुलिस क्या कर रही है? इंतज़ामिया के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ यहाँ पर शहरी एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है? जी, बहुत अलमिया है कि ज़िला चिन्योट में चोरी, डकैती, रहजनी, सिरका बिल जबर और इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग के मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की अदम दिलचस्पी, बेहिसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो ज़िला चिन्योट पुलिस जो है वो लोगों को अमन व अमान देने में नाकाम है। ये हमारी माइयाँ हैं, डाकू रात को घरों में घुस जाते हैं, इनके कानों तक से बालियाँ नोची जाती हैं। लोग तंग हैं और मैं मुतालबा करता हूँ आईजी पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से कि वो फिल फौर नोटिस लेकर उस वक़्त के जब हमारा पैमाना सबर लबरेज हो जाए और हम डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ज़िली इंतज़ामिया जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है उनका घेराव करें। उस घेराव से पहले होश के नाखल लें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अच्छा, वकला बरादरी भी जो है सरापा एहतजाज है। सर, आपकी तरफ भी चोरी हुई है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे पुलिस ने जो है ईद के दिनों में मुल्ज़िमों को बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी है कि आपने जिसकी चोरी करनी है करें। एक फ्लैग मार्च करने के बाद ये समझते हैं कि अब हमने फ्लैग मार्च कर दिया है, इसके बाद अब हर चीज़ पाकिस्तान चिन्योट में अमन अमान हो जाएगा। जबकि इनके लोग ना ड्यूटीज़ पर तैनात रहे और ना ही इन्होंने किसी किस्म का जो है ना हिफाजती इक़दाम किए। ऐसा लगता है जैसे पुलिस एहलकार मंशियात की तरह बाकी चोरी के वारदातों में भी मुल्ज़िमों के साथ शामिल हैं। जी, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस सो रही है। कुमैल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट पुलिस में भर्ती के लिए कामयाब उम्मीदवारों के लिए तकरीब, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस लाइन में खिताब किया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, वकार गुम्मन से जानते हैं। जी वकार। आज चिन्योट पुलिस में मुख्तलिफ सीटों पर जो भर्तियां हुई हैं उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। इंटरव्यू में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से आज डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस लाइन में मुलाकात की है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इनका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है या अभी कोई मरहला बाकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चिन्योट में जो पुलिस की भर्तियाँ हैं तमाम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल्स और पुलिस कांस्टेबल्स, ये मरहला कामयाबी से मेरिट पे शफाफ तरीके से मुकम्मल करके उनको आज हमने बुलाया है और आज से हमने वेरिफिकेशन का मरहला स्टार्ट कर दिया है। तो आज उनको बुलाकर हमने उनको बताया कि वो पंजाब पुलिस के हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इस हवाले से उनको ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और कानून और आइन की पाबंदी जिस तरह पहले वो करते हैं अब उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर करेंगे। और उन्होंने इस चीज़ का आज अज़म किया कि वो पुलिस में आकर खिदमत के जज्बे से काम करेंगे और इस मुल्क को, पाकिस्तान और इसके अवाम की हिफाजत के लिए अपने जानों का नजराना देने से भी दरेग नहीं। वकार हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया, जंग पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए कोशा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों का स्पेशल इनिशिएटिव थानों का दौरा, इस हवाले से तफसीलात क्या है अवैस खान बता रहे हैं। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक थाना जात और अवामी खिदमत मराकज़ के अंदर जो है वो खसूसी तौर पर सहूलियात की फराहमी की जा रही है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से आज जो है मुख्तलिफ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसा देखा आज जो है थानों में जो है वो इंसाफ की फराहमी के हवाले से बेहतरीन इक़दाम जहाँ किए जा रहे हैं, वहीं पर सहूलियात की फराहमी भी की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डीपीओ साहब की दावत पे हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और सीएम पंजाब और आईजी पंजाब की जो कोशिशें पिछले टेन्योर से ही जारी थी, उस हवाले से आज हमने जो देखा है हमारा बिल्कुल एक कंसेप्ट चेंज हुआ है कि माशाल्लाह जितनी सहूलियात, जितनी खूबसूरत थाने बनाए गए हैं और सबसे बढ़ के ये कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और हम जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ पे आज हाज़िर हुए हैं और इसके बाद हम अपने चैम्बर्स को हम ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे इल्म में भी नहीं थी कि यहाँ पे जंग के अंदर इतना अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ख़ास तौर पे जो अवेयरनेस है यानी ऑफिसर्स की हद तक, जैसे हमारे एसएचओ साहब हैं,
شاہد صاحب، تو ان کی جو معلومات ہیں، میں نے بلکہ یہ سوال کیا کہ اتنی معلومات کیا تمام ایس ایچ اوز کو ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل تمام ایس ایچ اوز کو یہ تمام معلومات ہیں، اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بہت زبردست ہے۔ بہرحال ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا جنگ ہے، اور ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ایس ایچ او سٹی جو ہیں شاید جی بس شکریہ آپ کا کہ فیسکو شعبہ بلنگ کی بڑی نااہلی، تمام 6 سرکلز میں مجموعی طور پر 2.25 لاکھ سے زائد صارفین کو غلط بل بھجوائے گئے۔ میٹر ریڈنگ کی ماہانہ ایکوریسی رپورٹ نے پول کھول دی، سب سے زیادہ سمندری سٹی ڈویژن میں غلط بل بھجوائے گئے۔ فیسکو کا شعبہ کسٹمر کیئر سروسز معاملہ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو شعبہ بلنگ کی بڑی نااہلی، تمام 6 سرکلز میں مجموعی طور پر 2.25 لاکھ سے زائد صارفین کو غلط بل بھجوانے کا یہ معاملہ ہے۔ میٹر ریڈنگ کی ماہانہ ایکوریسی رپورٹ نے پول کھول دیا، سب سے زیادہ سمندری سٹی ڈویژن میں غلط بل بھجوائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اویس علی موجود ہے۔ اویس بتائیے گا، عوام تو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، فیسکو مزید بوجھ ڈالے جا رہا ہے اور غلط بل بھجوا رہا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بالکل کہہ رہے ہیں آپ کہ پہلے ہی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، ایسے میں فیسکو کی جو نہری ہے وہ بجلی صارفین کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی ہے۔ فیسکو نے تمام 6 سرکلز میں مجموعی طور پر 2.25 لاکھ سے زائد صارفین کو غلط بل بجائے ہیں، جو انکشاف سامنے آیا ہے۔ میٹر ریڈنگ کی ماہانہ ایکوریسی رپورٹ نے پول جو ہے وہ کھول دیا ہے، سب سے زیادہ سمندری سٹی سب ڈویژن میں غلط بل بجائے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق، اور فیسکو کا شعبہ کسٹمر کیئر سروسز جو ہے وہ معاملے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی طرح رپورٹ کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بھی بحال نہیں کی جا سکی۔ فیسکو ملک کی ایک بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے، اور 98% سے زائد ایکوریسی بتائے جانے پر میٹر ریڈر کو فی کس 5,000 روپے معاوضہ ملتا ہے، کم آنے پر میٹر ریڈرز کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اور فیسکو کام کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کی جاری ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں حکومت کی جانب سے بڑھائی جا رہی ہیں، پہلے ہی لوگوں کی جانب سے بجلی کے بل ادا کرنے میں لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے، بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب بجلی کی تقسیم کار کمپنی جو ہے وہ غیر ایمانداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے جو بجلی صارف ہے اس پر جو ہے وہ ظلم بڑھایا جا رہا ہے، اوور بلنگ کی صورت میں، غلط بل بھیجنے کی صورت میں، اور بجلی کے بل جو ہے وہ ماہانہ واریوں کے مطابق نہ بھیجنے کی صورت میں۔ اور اسی کا ایک بڑا جو ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فیسکو کے 6 سرکلز میں 2 لاکھ سے زائد صارفین کو جو ہے وہ غلط بل بجانے کا جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جی، فیسکو عوام کی دشمن بن گئی، زیادہ بل بھیجنے لگی ہے، عوام آگے پریشان ہے اور عوام کو مزید پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کی چنیوٹ میں اپنے ڈیرے پر کھلی کچہری، ووٹر سے ملے اور مسائل سنے، کہتے ہیں لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ مزید کیا کہنا ہے بابر منیر سے جانتے ہیں۔ جی بابر۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ اپنے ڈیرہ پر موجود ہیں، ووٹر سے ملے ہیں اور کھلی کچہری لگائی ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل بھی سنے ہیں۔ اسی سلسلے میں قیصر احمد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، حل کے مسائل بھی سنے ہیں، کس قسم کے مسائل ہیں اور اب اللہ نے منصب بھی عطا کیا ہے، کس قسم کے مسائل ہیں، کیسے حل کروائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے لوگوں کے مسائل تو سب کو پتہ ہے کہ کس قسم کے ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں، مطلب بجلی کے بل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا روزگار نہیں ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں جاب دیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں یعنی دفتروں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کو رسائی نہیں ہوتی، تو یہ سب مسائل ہیں۔ کسی سے کوئی رابطہ کرنا ہے وہ میں رابطہ کروا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل آپ نے دیکھا کہ کھلی ہماری دوڑ ہوئی تھی، سارے لوگوں کو کہا تھا کہ تاکہ میں خود بھی دوڑا ہوں تاکہ لوگوں کو صحت کی طرف اپنے خیال ہو۔ ابھی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں نا، ہم ہر ایک قسم کے مسائل، آپ خود یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، کہ نا لوگ اپنے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ آج ہم تمام قاری جنہوں نے قرآن پاک کی شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔